Hello, welcome back to Math Vibes. In our series of concept of decimals, here comes our part 6 in which you will learn how to find the expanded form of decimal numbers. Take a moment to subscribe. Now, before we start with expanded form of decimal numbers, we should have an idea about how to do the expanded form of whole numbers. And that is why we have made the previous video breaking the series because to know about how to do the expanded form of whole numbers is very important in learning about the decimals in expanded form. So if you don't know yet, do watch that video. Okay, then only you'll be able to understand this better, this concept better. Okay, so what do you mean by expanded form? We have discussed it over there also, that expanded form means to write the place value of each and every digit in the number. Okay, so let us take an example. Let us learn about decimals in expanded form, and let us suppose that now we have the number 4.305. How I am speaking 4.305, that you must be knowing, as we have already discussed about it, about the places and the place values of decimal numbers. Okay, so we know that a decimal is divided into two parts by our part 1. Okay, the whole part and the decimal part. So first of all, when we are writing the expanded form of these numbers, then the first step will be that we have to write down the places of each and every digit. Now, well, there are two methods. Okay, so let us do the easier method first. All right, so this is our whole part and this is our decimal part. Okay, now when we have to write the place value of the whole part, then the same method we will follow, that you will count the number of zeros after the number in the first method. Now here, as the number is only 1, so this is at one's place only, so it is 4. Okay, then next we will write plus, but now this 305, this is in the decimal part. 305 is in the decimal part. Now when I have to write the place value of this, then earlier we used to do is कि we'll count the number. हम ऐसे करते थे कि नंबर के बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरोस, ये हम होल नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म करते थे, है ना। होल नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म थी कि नंबर के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस के साथ लगाते जाओ, ठीक है। बट वो होल नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म होती है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की है। बट नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप डेसिमल्स की एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, होल पार्ट में तो वो सेम मेथड चलेगा जो हमने पहले फॉलो किया वीडियो में। डेसिमल पार्ट में हम क्या करेंगे, हम एक एक नंबर लेंगे और वो डेसिमल से कितना दूर है अब ये काउंट करेंगे। ओके, डेसिमल से कितना दूर मीन्स 3 डेसिमल से एक नंबर दूर है, तो अभी 10 लगेगा, बट 10 उसके जीरोस के साथ नहीं लगेगा, वो डिनोमिनेटर में लगेगा। ओके, अब ये वाला जीरो डेसिमल से कितना दूर है, 2 डिजिट्स। ओके, सो 0/100, क्योंकि 2 जीरो वाला तो 100 ही होता है। देन 5 कितना दूर है, 3 डिजिट्स, सो ओवर 1 and 1000. Okay, so 4 into 1, because 4 was a whole number, 4 हमारा whole number था, तो 4 into 1 plus, अब 3 एक डिजिट दूर था ना डेसिमल से, तो ओवर 10, 1 0 लग गया। अब ये वाला जीरो 2 डिजिट दूर था, तो यहाँ पे 2 0 लग गए, विच मेक्स 100। और 5 3 नंबर्स दूर था, 1 2 3, तो 3 जीरो लग गए, दैट इज 1 2 3 1000। ओके, 5/1000। सो एक्सपेंडेड फॉर्म इज 4 into 1 plus 3/10 plus 0/100 plus 5/1000। ओके, 5/1000। अगर आपको अभी भी डाउट है कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं या फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लिखते हैं, डू वॉच पार्ट 1 ऑन आवर चैनल, इट इज इन द प्लेलिस्ट कंसेप्ट ऑफ डेसिमल्स, और आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट अस लुक एट दिस। ओके, नाउ ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद इन फ्रैक्शंस को, वैसे तो अगर आप इतना भी लिख दोगे ना तो भी आपका
that is correct. Your marks will not be deducted. Okay, but if you want to write it further in decimals form, then you can write like 4 plus 0.3 plus 0.005. अब ये फ्रैक्शन को इस डेसिमल में कैसे लिखा है ये आपको पार्ट 1 में देखना पड़ेगा. Okay, otherwise this video will become so long. Now let us take another example where you have to find the expanded form of 25.065. 25.065. Okay, so the answer will be this. कैसे आया? अब देखो 25 whole number था ना, 25 was a whole number. तो whole number को हम कैसे लिखते हैं कि 2 के बाद कितने डिजिट हैं उतने 0 लगा दो. तो 2 के बाद 1 डिजिट था तो मैंने 10 लगा दिया. 5 तो है ही वंस की प्लेस में, तो मैंने 5 into 1 लिख दिया. प्लस अब डेसिमल पार्ट की एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करते हैं? हर डिजिट डेसिमल से, पॉइंट से, डेसिमल से कितना दूर है. अब 0 सिर्फ एक डिजिट दूर है तो एक 0 लगेगा डिनोमिनेटर में. ठीक है, एक 0 कहाँ लगेगा? डिनोमिनेटर में. 6 डेसिमल से 2 डिजिट दूर है तो 2 0 लगेंगे 1 के साथ, डिनोमिनेटर में लगेंगे. बिकॉज ये हम अब डेसिमल पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग होल पार्ट. होल पार्ट ऐसे ही आएगा, 0 साथ में लगेंगी, बट डेसिमल पार्ट में जो जीरोस होती है वो नीचे लगती है. ओके, सो 0/10 प्लस 6/100 प्लस 5/1000, क्योंकि 6 2 डिजिट दूर था, 5 3 डिजिट दूर है, तो 1 2 3. ओके, अब अगर ये भी, वैसे तो ये करेक्ट आंसर है एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का डेसिमल में. ठीक है, बट अगर फिर भी ये आगे क्वेश्चन आए कि अभी उसको डेसिमल में ही कन्वर्ट करके बताना है, तो हाउ विल यू राइट? 20 प्लस 5 प्लस 0.1 प्लस 0.06 प्लस 0.005. ओके, अब ये सारे, मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये सारे फ्रैक्शन डेसिमल में कैसे बनती हैं मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है पार्ट 1 में. ओके, इफ यू विल गो टू आवर चैनल, इफ यू विल सी द प्लेलिस्ट कंसेप्ट ऑफ डेसिमल्स, तो उसमें पार्ट 1 में ही ये सारा एक्सप्लेन है. और अगर अभी भी डाउट है कि होल नंबर्स के एक्सपेंडेड फॉर्म में 7 0 क्यों लग रहा है, तो इस पे भी एक डिटेल वीडियो है जो मैंने इससे पहले डाला है. ओके, डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. Now let us look at another example where you have to find the expanded form of 34.308. So easily 3 into 10 plus 4 into 1 plus 3/10 plus 0/100 plus 8/1000. Same method, whole number में zeros साथ लगाने हैं और decimal part में zeros वाले number denominator में लिखने हैं और फिर उनको convert कर देना है points में. Okay, so it is 30.4 plus 0.3 plus 0.008. Some of the persons, they skip this 0, which is also okay if you don't write, but expanded form means to write the place value of each digit. So 0 also you should write. Okay, अगर आपने 0 लिखा है तो इसके नंबर नहीं कटते. Alright. Now let us look at decimals in expanded form, the flip side. The flip side means समटाइम्स जो हम अभी पीछे आंसर लिख रहे थे, कई बार वो आंसर दिया होता है और हमें जैसे वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें कंप्लीट नंबर बनाना होता है. नाउ दिस एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू मेक द डेसिमल नंबर. ओके, डेसिमल नंबर बनाना है तो कैसे बनेगा? देखो, होल नंबर को एज इट इज लिख दो. ओके, होल नंबर को एज इट इज लिख दो 3. ओके, अब आगे पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 10th प्लेस बनती है ना, तो पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 4 है, 4 लिख दिया. ओके, अब प्लस सेकंड, अब फर्स्ट के बाद तो सेकंड ही आएगा, सो फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर इज 9, सो द आंसर शुड बी 3.49. ओके, गॉट इट? हाउ वी गेट द आंसर? सो आंसर शुड बी 3.49. ओके, समझ लगा कैसे किया है? लेट्स लुक एट वन मोर एग्जाम्पल. सपोज दिस इज गिवन, इसको हम ये भी बोलते हैं कि राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट द गिवन डेसिमल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, एक्सपेंड करके लिखने का, ये ऐसे लिखने का क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म. और ये वाला जो वन वर्ड लिखा हुआ है, वन नंबर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना. अब देखो, इसमें होल पार्ट था ही नहीं, होल पार्ट में हर जगह 0 0 है, तो वी विल स्टार्ट विद 0 ओनली. 0 पॉइंट, फर्स्ट डिजिट कौन सा है? 7 लिख दिया.
सेकेंड डिजिट कौन सा था, 3 लिख दिया। अब उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सा डिजिट है, 1 2 3, थर्ड नंबर पे तो 0 है तो 0 लिख दिया। फोर्थ पे 2 है तो 2 लिख दिया। सो 0.7302। एंड कई बार कुछ बच्चे क्या करते हैं, दे यूज टू राइट इट, फिर उसको प्लस करते हैं, फिर प्लस करके देखते हैं। वाई टू डू दैट, जब हम ओरली कर सकते हैं तो हम उसको प्लस करके क्यों देखें, उसमें कोई गलती हो जाएगी क्योंकि देयर आर सो मेनी जीरोस। सो सीधा काउंट करो डिजिट, फर्स्ट प्लेस पे क्या है, सेकंड प्लेस पे क्या है, थर्ड पे क्या है, फोर्थ पे क्या है। ओके, like that you can count and write easily. All right, so here is the practice time. I have written some of the questions for you. Some of the questions are where you have to write in standard form. Okay, so you have to do that and then only you will come to know that whether you have understood the questions or not. Okay, these are I've written in expanded form and you have to write it in the standard form for your more practice. All right, I hope it is clear to you. Do take up more questions, more examples from your book or otherwise, and you can try to write down the expanded form of decimals or the standard form very easily. Right, I know you can. Come on. And if you can, and if you liked the video, then don't forget to press the subscribe button, please. Alright, and the next video will be on rounding of decimals. We are going to start with rounding of decimals or estimation. So before going on to decimals, we'll firstly discuss what is estimation. Okay, then estimation in whole numbers, and then we will come to rounding of decimals. That video will be the part 7 in our series concept of decimals. Till then, bye bye.